Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. My Lord, increase me in knowledge. Assalamu alaikum students. This is your science teacher, Aksa Faisal, and this is our third video lecture on the topic of balanced diet. So dear students, in our previous lectures, we read about balanced diet and the value of balanced diet and the nutrients of balanced diet. We have read about uh, protein, carbs, carbohydrates, and then fats, oils. These were the basic nutrients of balanced diet which we human being do consume. Today we will read about vitamins. What are the vitamins? We need vitamins to grow and stay healthy. We need vitamin in very tiny amount. Some of the important vitamins are A, B, C, D, E, and K. Vitamin A is found in carrot, milk, and green vegetables. It keeps the skin and bones healthy. It is also good for the eyes. Vitamin B is found in milk, eggs, bread, and green vegetables. It is good for the normal growth of the body. Vitamin C is found in oranges, lemons, and green vegetables. It keeps the gums, teeth, and skin healthy. Vitamin D is found in butter, cheese, eggs, and fish. It is good for the bones and teeth. I'm sorry, students. Due to the throat infection, there is a little bit inconvenience for me to talk continuously while delivering the lecture. So sorry for this inconvenience, and by continuing the lecture, I would explain it. What is the meaning of vitamins? Vitamins are pretty much important for the healthy growth of our body. आपने सुना होगा कि जो लोग बीमार हो जाते हैं वो vitamins लें तो उनको वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। vitamins जो है ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा vitamins हमारी ओवरऑल हमारी बोन्स के लिए और हमारी टीथ के लिए, हमारी जितनी भी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स में ये विटामिन्स पाए जाते हैं जिस तरह के यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इट मीन्स कि वी शुड add a little amount of vitamins in our daily routine diet so that we can grow in healthy manner. Then the next topic is about minerals. There are about 15 different minerals in our body, in our food. They are found in meat, eggs, milk, fruits and vegetables. So minerals जो होते हैं वो भी fruits, vegetables में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं as compared to meat, eggs and milk. और ये हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमें किसी भी किस्म के जरासीम जो हैं लग जाते हैं या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है इन मिनरल्स को लेकर और हम जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकते हैं अगर हम प्लेंटी अमाउंट में विटामिन और मिनरल इंस्टेंटली लेना शुरू कर देते हैं तो। देन वी हैव कैल्शियम. Calcium is a mineral which is good for the bones and teeth. Calcium is found in milk and eggs. कैल्शियम जो है वो हड्डी हमारी जो हड्डियां हैं हमारी जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Iron is a mineral which is found in liver and spinach. It helps in making red blood cells. Iron आयरन भी मिनरल की टाइप है कैल्शियम की तरह और ये लिवर में और स्पिनच में पाया जाता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Our next topic is water. 3/4 of your body is made up of water. Water is very important for the body. It helps to carry substances from one part of the body to another. It carries food to the cells. It takes away unwanted food substances from the cells. We must drink at least
6 to 8 glasses of clean pure water every day. हमारी बॉडी का जो 3/4 हिस्सा है ये पानी पर मुश्तमिल है। पानी की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं हमारी बॉडी के, जितने भी जहरीले मादे होते हैं, उनको हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है, उनको लेके बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हमारे सेल्स की जो रिपेयरमेंट होती है उसके लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और हमें अपनी डेली डाइट में एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ क्लीन प्योर वाटर शामिल करना चाहिए। Then we have fiber. Fiber is a very important part of our diet. Fiber is that part of fruits, vegetables, and food grains that cannot be absorbed or digested by the body. We must eat fiber so that the food we eat can easily pass through the digestive system. Fiber helps in digestion. फाइबर भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का, और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है फाइबर। इसके अलावा ये खुद एब्जॉर्ब होने में तो दिक्कत होती है, इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता ये हमारी बॉडी में, बट जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं बाकी डाइट है उसको एब्जॉर्ब होने में ये हेल्प आउट ज़रूर करता है, जिसकी वजह से हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको डाइट में शामिल करना चाहिए। Okay, dear students, this is question number 2. What happens to the food that is taken into the body? उस खुराक के साथ क्या होता है जो हमारी बॉडी में चली जाती है? Food that is taken into the body is first changed into simple substances that dissolve in the blood. From there it goes into the cells and is used up by the body. वो खुराक जो हमारी बॉडी में चली जाती है, आपको बताया गया है कि स्टमक में कुछ एसिड्स के प्रोसेस के बाद कुछ छोटे छोटे से सब्सटेंसेस में चेंज हो जाती है, जिसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाती है, अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाती है हमारे ब्लड में। वहाँ से वो सेल्स को पहुँचती है, हमारे जितने भी खुलिये हैं उनको पहुँचती है, और फिर वो जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को मिलकर बनाते हैं, जिसमें के बेसिक जो रोल है वो हमारी डाइट का, हमारे फूड का होता है, जो हमारी बॉडी को बिल्ट अप कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है, उसका जो एक्सरसाइज का लास्ट पेज है ना आपका, ये वो है, ठीक है। ये हमारा मिस हो गया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने इसलिए अब इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी बनाकर, और ये आपको मैंने कंप्लीट करवा दी। डायग्राम्स हैं ये, इनका आपने नेम लिखना है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। The first one is the picture of muscles, then the picture of heart, then the picture of brain. आपने बस नेम लिखना है नीचे। देन लेबल द डायग्राम। सेकेंड वाली डायग्राम को भी हमने लेबल करना है इसी तरह से। तो सबसे पहले लिवर है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर उसके साथ स्टमक है। थर्ड वाली जो हमारी थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी ईयर की डायग्राम है, इसमें ईयर ड्रम है, साउंड वेव्स हैं जो कि कान के अंदर जा रही हैं, और फिर वो ईयर कैनाल में से गुजरती हुई ईयर ऑसिकल्स पे वो पड़ती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो आगे जनरेट होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जाती है, फिर कोक्लिया में एंड पे जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये ईयर का स्ट्रक्चर है, ये आपने बस इन पर लिख देना है अपनी डायग्राम पे, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और आपको जो काम करना है वो ये कि आपने पेज नंबर 33 एंड 34 हाफ की रीडिंग करनी है और आपने क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नोटबुक्स में लिखना है, उसको लर्न करना है, और आपने पेज नंबर 14 है बुक का, जो यूनिट नंबर 1 का है, इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो ये आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। Until then, take care. Allah Hafiz.